Hello student friends, welcome to this digital techniques lectures. So in the last lecture we had discussed about some concepts about multiplexer tree, mux tree, and we had tried to implement 8:1 using 4:1, and I had given and I had asked you to solve 4:1 using 2:1. Okay, and it had some logical parts, some concepts to understand. Now let us try to solve this question. Implement 16:1 mux using 4:1. Okay, in the last lecture I had given one question, MCQ type of question that is many times asked in some competitive exams, that how many 4:1 mux are required to implement 16:1 mux. Let us try to answer that question also. Okay, so here let us put some concepts that 16:1 mux has 16 inputs and this has 4 inputs, 1 output, 4 select lines and 2 select lines. Now how are we going to map these 4 select lines and 2 select lines so as to obtain this 16:1 using 4:1? Okay, so I have just roughly drawn this circuit for you. Still I have just tried to make this circuit compact, but let's see how this can be worked out. Okay, all right, so initially you can understand for 16:1 mux using 4:1, 4 into 4 is 16, right? So 4 into 4, this 4:1 mux, initially we need to use 4 this mux, right? So you can see here 1 2 3 4, there are 4:1 mux. Okay, and the input to this mux, we can say, now we have 16 inputs, right? So 16 input means D0 to D15. So I can just name these inputs as D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14 and D15. Okay, since it is 4:1, here for every this mux we are supposed to provide only 2 select lines. So this is combined, you can see I have provided this S0 S1 for mux 1 mux 2, S0 S1 for mux 3 mux 4. Okay, so this is same S0 S1. So I can just extend this S0 and this S1. So this is S0 S1. It is a combined, common, right? So what I have done here is I have just given 2 select lines, because for 4:1 we are actually using 4:1. For 4:1 only 2 select lines are required. So वो 2 select lines यहाँ पे मैंने दे दिया है, लेकिन 16:1 के लिए 4 है, तो 4 में से 2 select lines मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं. ठीक है, अब देखो मैं अगर S1 और S0 इसको 0 0 देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने 0 0 दिया. सो लेट्स सी आई हैव गिवन दिस 0 0 हियर, 0 0, इसको भी 0 0 आएगा, इसको भी 0 0 आएगा और इसको भी 0 0, right? So out of all these inputs, this 0th line will be selected. अब इसका लॉजिक कैसे है ये हमें देखना है. ठीक है, out of these all 4 inputs for each 4:1 mux, the 0th line is selected.
मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, इनिशियली अगर मैं इसको 0 0 देता हूँ, यहाँ पे आएगा D0, यहाँ पे आएगा D4, यहाँ पे आएगा D8 और यहाँ पे आएगा D12। लेकिन बट द व्हाट वी से प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लेक्सर इज, उसके कितने भी इनपुट्स रहने दो, आउटपुट एक ही आना चाहिए। अब यहाँ पे तो हर एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स का एक ही आउटपुट आ गया, लेकिन आउटपुट साइड में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 4 आउटपुट्स हैं। तो ये 4 आउटपुट में से भी मुझे एक ही सिलेक्ट करना है, एक ही आउटपुट सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक और 4:1 मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे लगेगा। दिस इज फाइनल आउटपुट, राइट। सो ये यहाँ से we can say this as 0 1 2 3। अब जो 2 सेलेक्ट लाइंस बचे थे, इनके लिए हमने 2 सेलेक्ट लाइंस यूज़ किए, बचे 2 सेलेक्ट लाइंस। आई एम गोइंग टू यूज दैट सेलेक्ट लाइंस हियर, विच विल बी S4 and S3। sorry, not this, it will be S3 and S2, because we have S0, sorry, S3, S2, S1, S0। so ये दो हमने यूज़ किए हैं, ये दो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। I'll just write S3, S2, this select lines। ओके, तो यहाँ पे फिर से देखो S1, S0, इसको अगर 0 0 देता हूँ तो हर एक में से जो 0th लाइन वाला इनपुट है वो आउटपुट का आता है। इसको अगर मैं 0 1 देता हूँ तो यहाँ पे है 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, नाउ हियर इट विल बी D1, D5, D9 एंड D13। तो हर बार जब मैं कुछ बाइनरी इनपुट दे रहा हूँ S1 S0 को, तो हर एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स का आउटपुट आ रहा है और यहाँ पे 4 इनपुट्स क्रिएट कर रहा है। ओके, सो वो चारों इनपुट्स मैंने अगले एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर को दिए हैं और यहाँ पे जो 2 सिलेक्ट लाइंस बचे हैं, आई हैव यूज दैट। सो जस्ट नाउ कंसिडर दैट माई S1 S0 इज 0 0, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, D0, D4, D8 एंड D12, ठीक है। अब मुझे इनमें से नाउ आई वांट टू सेलेक्ट ओनली वन आउटपुट आउट ऑफ दिस 4 इनपुट्स। तो देन आई विल यूज दिस S3 S2। तो इसको मैं 0 0 अगर देता हूँ, राइट, सो ये D0 ये सिलेक्ट होगा और आउटपुट को आएगा D0। ओके, सो फॉर D0 माई S3 S2 S1 S0 शुड बी 0 0 0 0। मुझे अगर D4 देना है, D4 अगर देना है, फॉर D4 ये तो 0 0 रहेगा, पहला 0 0 रहेगा, राइट। यहाँ पे फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करना है, सो इट इज 0 1, सॉरी 1 0, नहीं 0 1, 0 1 अगर मैं देता हूँ तो आउटपुट विल बी D4। ओके, मुझे अब D8 सेलेक्ट करना है। D8 किसको इनपुट दिया है, ये 5th 4:1 मल्टीप्लेक्सर है, उसके सेकेंड लाइन को। सेकेंड लाइन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। सो इट इज़ 1 0 और यहाँ पे 0 0, राइट। सो ये सीक्वेंस भी हमारा हमें चेंज करना पड़ेगा। सो दिस शुड बी S1, सॉरी S0 S1 S2 S3।
right? So this sequence also needs to be corrected in this way. Okay, so you can simply form the truth table for this 16:1 mux using 4:1. ओके, अब इस तरह से अगर आप देखोगे तो कितने 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स हमने यूज़ किए हैं? वी हैव यूज्ड 5 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स टू इम्प्लीमेंट 1 16:1 मक्स. सिर्फ 4 यूज़ नहीं किए, एक और 4:1 मल्टीप्लेक्सर हमें यहाँ पे लगाए हैं. वी हैव यूज्ड दैट. ओके, सो 5 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स कैन बी यूज्ड. अब आप बोलोगे कि यहाँ पे और गेट क्यों नहीं यूज़ किया? आई कुड हैव यूज्ड और गेट ऑल्सो, बट रिमेंबर फॉर 16:1 mux we have 4 select lines, out of which here we have just used 2 select lines. तो 2 बाकी बचे हैं ना, तो उसका हम कैसे यूटिलाइज करते हैं? अगर मैं और गेट यूज़ करता हूँ तो इसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है. इसलिए मुझे ये यूटिलाइज करना है. लॉजिकली आई वांट टू यूज़ दोज रिमेनिंग 2 select lines. That is why I am using this 4:1 multiplexer here again. Okay, so just let me just show the truth table of this 16:1 mux using 4:1 mux. You can just see this. I hope this is visible for you. देखो, ये 0 0 है तो मल्टीप्लेक्सर ये सेलेक्ट होता है, राइट? फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर में से आउट ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर D0 is selected, right? Then for second multiplexer D4 is selected. Then for third multiplexer D8 is selected, and then for fourth multiplexer D12 is selected. जो हमने यहाँ पे अभी देखा था, D0, D4, D8, D12 मेरा जब ये 0 0 रहता है, राइट? 0 0 0 0. ओके, इसको 0 0 ही रखता हूँ सो दैट मैंने S3 S2 को अगर मैं 0 0 रखता हूँ तो ये 0 ही सिलेक्ट होता है हर बार. ठीक है, ये 0, दिस 0 इंडिकेट्स फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर mux 1. दिस इनपुट्स coming from this output corresponds to this D0 input of fifth multiplexer. इसलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें पहले ब्लॉक में S3 S2 0 0 ही है. यहाँ पे उसका वैल्यूज चेंज होता है 0 0 0 1 1 0 1 1. उसके हिसाब से इनपुट्स सेलेक्ट होते हैं आउटपुट के लिए. बाद में देखो दिस रिमेन्स 0 1 मीन्स फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर के इनपुट्स यहाँ पे सिलेक्ट हो गए इधर, राइट? देन अगेन दिस इज 0 0 0 1 1 0 1 1. यहाँ पे इट इज़ 1 0 मीन्स इट इज़ सेकेंड. फिर से यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1 और यहाँ पे इट इज़ 1 1 मीन्स थर्ड. 1 1 मीन्स थर्ड. जो ये मल्टीप्लेक्सर जो फाइनल मल्टीप्लेक्सर है वहाँ के इनपुट सेलेक्ट करने के लिए इसको हम 1 1 देते हैं, राइट? यहाँ पे भी देखो इट इज़ 0 0 0 1 1 0 1 1. और इस तरह से ये अपना टेबल तैयार होता है. द टेबल ट्रुथ टेबल फॉर 16:1 यूजिंग 4:1 mux इज डिजाइन इन दिस वे. ओके, आई होप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट you can just apply your logic and just try to understand these concepts. Now here we have not used the enable pin of multiplexer. Enable pin वो 8:1 यूजिंग 4:1 केस में हमने यूज़ किया क्योंकि वहाँ पे वैसा रिक्वायरमेंट था. यहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट नहीं है. यहाँ पे
ई हमेशा 1 ही है ऐसा कंसिडर करते हैं हम. Enable is always 1 for this implementation. That is what we all the time consider. Okay, so this is how the multiplexer tree is, right? So in the next lecture we can go for understanding how we can reduce the given Boolean expression using multiplexer, right? We have seen how we can implement using K-map. Now we can see how a given expression can be implemented using multiplexer. Till then, have a nice time. Thank you.